So hello aspirants, welcome back to the channel. This is the part 2 of our EPAFO 2025 series where we'll discuss important MCQs on labor law and social security which is based on the previous year paper and latest exam trends जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलके आपकी 100 प्लस फुल रिवीजन कर देगा. So let's get started and make your revision strong. Here's the first question. The International Labour Organization was established in. I think this is the easiest question. So it is established in 1919 under the Treaty of Versailles वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. आईएलओ के बारे में कुछ जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए. आईएलओ गॉट नोबेल प्राइज इन 1969 and it was formed in Treaty of Versailles. ये तो पता ही है. ILO is signed as a peace treaty. ILO की एस्टैब्लिशमेंट ने ये बिलीव दिखाया कि यूनिवर्सल और लास्टिंग पीस तभी अचीव किया जा सकता है जब वो सोशल जस्टिस पर बेस्ड हो. एंड दैट वाज टोटली द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. India became a member of the ILO in. इंडिया कब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था? So the answer is the same year ILO established. उसी साल जब ILO बना था उसी साल इंडिया मेंबर बन चुका था. So India was a founding member of 1990. India became founding member in 1919 but it became permanent member in 1922. एंड इंडिया में आईएलओ का फर्स्ट ऑफिस खुला था 1928 में. ऑलराइट, सो एक क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन आ गए. इंडिया बिकम मेंबर इन 1919 but become permanent member in 1922 and ILO first office in India was inaugurated in 1928. So this was the whole concept of ILO regarding India. All right, let's move to the next question. Here is all the things which I told. The headquarters of ILO is located at. I know most of you know this answer and you must know this answer because it is the easy question. It's located in Geneva, Switzerland. Okay, the next question is the ILO is a specialized agency of. So it is the specialized agency of UN, United Nations, and it became a specialized agency in 1946. So we read a lot of information about ILO. Now we will see some information about the options given, like IMF and World Bank दोनों बना था ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से एंड दोनों बना था 1944 में. IMF का मेन फंक्शन है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड टू प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज एंड दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में. ऑलराइट, एंड the options here and one more answer is World Bank president is Ajay Banga, very important, and IMF director general
is Kristina Georgina from Bulgaria. And World Bank was पहले इसको कहा जाता था IBRD and RDA. सो ये दोनों को मिला के बना था वर्ल्ड बैंक इन 1944 ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के और कॉन्फ्रेंस में बना था ये वर्ल्ड बैंक. Almost IMF and World Bank has same features. It's just that World Bank provide loans for the longer period. Now UNESCO. UNESCO is headquarter is in Paris, France. It promotes education, science, culture, communication worldwide. And its Director General is Andre Azoulay. And India has total 44 UNESCO sites. The latest one is Maratha Military Landscape, which added on July 2025, which has 11 forts in Maharashtra and 1 fort in Tamil Nadu. So these are the all information about all the options, and the answer is United Nations. Let's move to the next question. The ILO unique feature is, what is the unique feature of International Labour Organization? So the unique feature is tripartite representative. Means the ILO has 3 representatives: the government, employer and worker. So now some facts about ILO. That, do you know who was the first Director General of ILO when it was made in 1919? So it was Albert Thomas. Albert Thomas was the first Director General of ILO. He was a French politician. He was a French politician who served from 1990 to 1932. And who is the current Director General of ILO? Did anybody know? So the current is Gilbert F. Hangbo. And one unique feature about him is that he is the first person from an African nation to hold the position. वो अफ्रीका से हैं, पहले अफ्रीकन है जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड किया है ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO. और आप बताएंगे कि वो कौन से अफ्रीकन नेशन से है. Let's quickly move to the next question. The next question is about strike. Strike is defined under which section of the Industrial Dispute Act 1947? So the answer is section 2Q. Defines strike as a cessation of work by a body of person. Quickly जो options में है उसको भी देख लेते हैं. Section 2K. Section 2K defines industrial dispute. Defines the meaning of industrial dispute. मतलब industrial dispute का मतलब क्या है? Industrial dispute means any disagreement or a conflict between employer and employee, employer and workman, workman and employee, everything related to dispute is in section 2K. 2Q तो हम लोगों ने बता ही दिया स्ट्राइक के बारे में है. And section 22. Section 22 deals with a prohibition of strike and lockout in public utility service. इसका मतलब यह है कि workers can't go to strike in public utility service like water, electricity, transport, ये सब सेक्टर पे जो काम करते हैं, these workers cannot go on strike without giving proper notice to the employer. This is written in the section 22. Notice must be given within 6 weeks before going to the strike or lockout. And no lockout or strike can happen within 14 days of giving notice. And section 23
Section 23 is about no strike or lockout allowed while dispute proceeding are going on in लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। कहने का मतलब यह है कि कोई भी स्ट्राइक नहीं किया जा सकता या लॉकआउट भी नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई भी लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट चल रहा हो। So this was all about strikes and the sections. Let's move to the next question. The Payment of Bonus Act 1965 applies to the establishment with minimum. Payment of Bonus Act 1965 अप्लाई करने के लिए मिनिमम कितने वर्कर्स चाहिए? So it's applicable where 20 or more employees are employed. 20 या 20 से ज्यादा में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अप्लाई होगा। So the notice period for closing down an undertaking where 100 plus workers are work means if you want to close down any establishment, किसी भी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन को आपको बंद करना हो तो आपको कितने दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा? So the notice period is for 90 days under section 25O. We'll do all the questions quickly because इसमें ज़्यादा कुछ समझाने या समझने का नहीं है. It's just like facts. किसी में भी अगर फैक्ट्स बताना होगा तो उसमें हम टाइम लेंगे. इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है. It's just like static. So let's move to the next question. Minimum wage includes मिनिमम वेज में क्या क्या आता है? सो द मिनिमम वेज comprises basic rate of wage plus cost of living. So the basic plus DA मिला के होता है मिनिमम वेज. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. Wage ceiling under the Payment of Wage Act 1936. What is the wage ceiling under the Payment of Wages Act 1936? Payment of Wages Act 1936 में wage ceiling कितना किया गया था? So it's 24,000. Employees drawing up to 24,000 month are covered in this Payment of Wages Act. ऐसे किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी जो 24,000 या उससे कम है तो उस पर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट अप्लाई होता है. इस एक्ट में ये इंश्योर किया गया है कि एम्प्लॉय को उनकी सैलरी टाइम पर और बिना किसी कलर डिडक्शन के मिले. तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि जिसकी सैलरी 24,000 से ज़्यादा है उन पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है फिर? तो उन पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाई नहीं करते बल्कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी रूल और लेबर लॉज जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट इसमें उन लोगों के लिए जो 24,000 से ज़्यादा कमाते हैं. एंड विद अंडर 24,000 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाई होता है उनके लिए. सो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिडक्शन अंडर द एक्ट शुड नॉट एक्सीड. आप किसी की सैलरी में से कितने परसेंट से ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते? So you cannot deduct more than 50% of the wage. Under the Factory Act 1948, the term factory applies to the premises employing. कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत हम लोग किस प्रीमिसेस को फैक्ट्री कहेंगे? मतलब उसमें कितने लोग काम करने होने चाहिए,
कि हम उसे फैक्ट्री कहेंगे। So the answer will be D. 10 or more worker with power, 20 or more worker without power. It means that उसमें 10 लोग होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, और 20 लोग होने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन 20 लोग रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन 10 लोग हो और इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो फैक्ट्री कहलाएगा। सो द आंसर विल बी बी एंड सी बोथ। सो बोथ विल बी एलिजिबल फॉर अ फैक्ट्री। ये आता है सेक्शन 2M में। अप्लाइज टू 10 वर्कर विद पावर एंड 20 विदाउट पावर। मीन्स 10 वर्कर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो एंड 20 वर्कर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, वो फैक्ट्री कहलाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंटीन फैसिलिटी बिकम्स कंपल्सरी इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग। कैंटीन फैसिलिटी देना अनिवार्य हो जाता है कौन से फैक्ट्रीज में? कितने एम्प्लॉय वहाँ मिनिमम होने चाहिए ताकि वो कैंटीन फैक्ट्री देना अनिवार्य हो जाए? So it must have 250, 250 प्लस वर्कर होने चाहिए। अंडर सेक्शन 46 में लिखा हुआ है कि कैंटीन इज मैंडेटरी फॉर द फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 250 प्लस वर्कर्स। वहां देना कैंटीन अनिवार्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So the Maternity Benefit Act 1961 provides paid maternity leave of मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में कितने दिनों का पेड मैटरनिटी लीव दिया जाता है? तो क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट पे आते हैं। सो द आंसर विल बी 26 वीक्स। ये अमेंड हुआ था 2017 में, 12 वीक पहले था, अब 26 वीक्स हो चुके हैं। 26 वीक्स पेड लीव इज गिवन टू द मदर ऑन द मैटरनिटी लीव अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। पहले ये 12 वीक था, अब ये 12 वीक थर्ड चाइल्ड के लिए हो गया। थर्ड चाइल्ड और एडॉप्टेड और लाइक सैरोगेट फॉर 3 months, 3 years बेबी, इनके लिए हो गया 12 वीक्स, और द फर्स्ट टू बॉर्न 26 वीक्स। सो इतना ही जानना था इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Employer must provide creche facility if establishment employees। उस इस्टेब्लिशमेंट में कितने लोग काम करने होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयर को क्रीच फैसिलिटी देना पड़े? क्रीच मतलब जहाँ बच्चे को लाइक छोटे बच्चे मदर लेके जाती है, वहाँ रख सकती है उन्हें, सारी फैसिलिटीज होती हैं, उन्हें क्रीच कहते हैं। फैक्ट्री के अंदर ये फैसिलिटी होती है, क्रीच फैसिलिटी। तो कितने एम्प्लॉय होने चाहिए मिनिमम? सो द क्रीच फैसिलिटी रिक्वायर्ड इफ 50 और मोर एम्प्लॉय आते हैं, 50 और ज़्यादा, 50 प्लस हो तो अब क्रीच फैसिलिटी एम्प्लॉयर को देना ही पड़ता है फॉर द मदर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैटरनिटी बेनिफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। कौन से बेसिस पे मैटरनिटी बेनिफिट कैलकुलेट होता है? सो इट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डेली वेज। एवरेज जो डेली वेज होता है उसके बेसिस पे मैटरनिटी बेनिफिट कैलकुलेट होता है। The Apprentice Act 1961 was enacted to, it was enacted to provide training for apprentice. This is an easy question because everybody knows what apprentice mean, and एक ही में ये था ट्रेनिंग, सो ये आप इसको गैस भी कर सकते थे। इट्स प्रोवाइड ट्रेनिंग।
The Apprentice Act applies to both government and private sector. Who is responsible for ensuring compliance of the Apprentice Act? बेसिकली इसका मतलब है कि अप्रेंटिस एक्ट की जितनी भी मतलब जानकारियाँ या इंफॉर्मेशन, इसकी सारी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो कौन संभालता है? तो वो संभालता है अप्रेंटिस एडवाइज़र, इन्फोर्सेस द एक्ट। इनको सभी जानकारियाँ होती है इस एक्ट के बारे में, सो ये इस एक्ट को इन्फोर्स करते हैं जो भी अप्रेंटिस आते हैं। The Equal Remuneration Act 1976 ensures, Equal Remuneration Act 1976 क्या इंश्योर करता है? What is it all about? So it's all about equal pay for equal work. It mandates equal pay for men and women performing same work. No discrimination. It provides equality. Equal Remuneration Act आया था for the equal pay for equal work. The Equal Remuneration Act applies to, in which sector this act applies? Both organized and unorganized. It applies to both the sectors. The authority appointed under the Equal Remuneration Act to hear complaint is, who hear the complaint about the Equal Remuneration Act? अगर किसी को कंप्लेन करना हो कि उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा, सो वो किन्हें कंप्लेन करेंगे, किस अथॉरिटी को? वो कंप्लेन करेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। Same work or work of similar nature refers to, same work and the work of similar nature, इसका क्या मतलब हो रहा है, क्या मतलब बनता है इसका? So it's referred to work with equal skill, effort and responsibility. इसका मतलब हुआ same work or work of a similar nature. It means work requiring equal skill, effort and responsibility. The Equal Remuneration Act prohibits discrimination in, ये अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन, बोनस में डिस्क्रिमिनेशन, वेलफेयर में, रिक्रूटमेंट में या हाउसिंग में। सो ऑफकोर्स ये पेमेंट और रिक्रूटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन को देखता है। तो किसी के साथ रिक्रूटमेंट या पेमेंट रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ये इक्वल रेम्यूनरेशन के एक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट मतलब समान वेतन, अधिकतम और वेतन देने में भेदभाव को रोकना। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहता है कि मेन और वुमेन को सेम वर्क या सिमिलर वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए। इस एक्ट के तहत रिक्रूटमेंट और वेजेस में जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस वाज द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। The Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970 applies to the establishment employing। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कौन से एस्टैब्लिशमेंट में लागू किया जाता है?
So it's required 20 or more contract workers. Applies to every establishment or contractors employing 20 or more contract laborers. So 20 से ज़्यादा लोगों में contract labor अप्लाई होगा एक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी जानने का नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। Who is the principal employer under the Contract Labor Act? लाइक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में कौन सा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, हाईएस्ट पोजीशन पे कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में? सो द ओनर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, जो भी उन्हें ओन करता है वो होता है हाईएस्ट पोजीशन पे। जो भी एस्टैब्लिशमेंट को ओन करता है वो होता है हाईएस्ट पोजीशन में अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। आंसर विल बी बी। Which body regulates and monitors the employment of contract labor? So it's Central and State Advisory Board. Advisory Board advises the government on regulation and abolition of contract labors. So they are the regulators. Registration of establishment employing contract labor is done by. Who does the registration under the contract labor? So the principal employer has the power for the registration of contract labor. Principal employer must obtain registration under section 7. सेक्शन 7 में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो इसके तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रजिस्ट्री करवा लेना पड़ता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस, नथिंग मच टू लर्न अबाउट दिस। वेलफेयर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग so the work employee of 500 or more worker, 500 और उससे ज़्यादा वर्कर जहाँ हो वहाँ वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना अनिवार्य है। सो अंडर द फैक्ट्री एक्ट मैंडेट्स एम्पॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इफ 500 प्लस वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। 500 प्लस वर्कर हो तो वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना इट्स मैंडेटरी। आंसर सी। Who bears the cost of welfare facility? ये जो वेलफेयर ऑफिसर इनको अपॉइंट करना, इनकी सारी सैलरी और सारे कॉस्ट कौन बेयर करता है, कौन उठाता है? सो ऑफ कोर्स द एम्प्लॉयर, जो भी इन्हें रखता है वही उठाता है। तो चलिए कुछ सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं और बार बार सेम कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी। सोशल सिक्योरिटी मीन्स, सोशल सिक्योरिटी वर्ड का क्या मतलब होता है? So it's economic protection in times of need. It means a financial protection during sickness, old age and unemployment. Which is the first social security legislation in India? सोशल सिक्योरिटी के बारे में पहला कानून कब आया था या कौन सा आया था? सो ये आया था ESI Act 1948, which was the first comprehensive social security law. इतना ही जानना था इसके बारे में, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। The Employment Provident Fund EPF Act 1952 applies to establishment employing. EPF Act कौन से establishment में अप्लाई किया जाता है, कितने एम्प्लॉय लगते हैं वहाँ अप्लाई करने के लिए? EPF 20 प्लस एम्प्लॉय लगते हैं, EPF वहाँ पे
लागू करने के लिए किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में। अंडर द ईपीएफ स्कीम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेट इज, क्वेश्चन रिपीट पे आया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट पे आते हैं और ये आया है, सो यू मस्ट नो दिस। ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। सो इट्स 12%। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई हैव टू पे 12% ऑफ देयर बेसिक वेज। इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेफर टू, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्या मतलब होता है? Industrial relations basically refers to relation between employer and employee. Very simple. It denotes the relationship between the management and the labor. That's it. How many new labor laws were introduced by the government of India in 2021? Very basic question. So four labor laws were consolidated from 29 central labor laws. पहले 29 थे, उसको बिल्कुल ही छोटा करके 4 लेबर लॉज में उसको डिवाइड कर दिया गया 4 कोड्स में। आंसर इज सी। The Code on Wages 2019 covers, so it covers all the employees in organized and unorganized sector. So it's जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस था उसमें 24,000 जो लोग जिनकी सैलरी थी वो उनके ही पे लागू होगा, लेकिन द कोड ऑफ वेजेस जो है इट विल बी अप्लाई टू एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेज और सेक्टर, ये सब पे लागू होगा। और पेमेंट ऑफ वेजेस जो था वो 24,000 जो हर महीने कमाते हैं उनके पे ही लागू होगा। और कोड ऑफ वेजेस पे ये डिफरेंस है पेमेंट ऑफ वेजेस से कि इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द एम्प्लॉई इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेज और सेक्टर। So you must understand this. Let's move to the next question. The Code on Social Security 2020 merges. So it merges to 9 acts. Code on Social Security total 9 acts में बांट दिया गया है। 9 social security laws including EPF, ESI, gratuity, all are in this 9 acts. So answer will be C. The Industrial Relation Code 2020 replaces which act? Very basic question. It replaces Industrial Dispute Act. Industrial Relation Code, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और स्टैंडिंग एक्ट को मिला के एक ये एक्ट बना दिया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एक्ट। आंसर सी। सो द वीकली हॉलीडे संडे जो कि होता है इंडिया में, इट्स मैंडेटरी अंडर कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है वीकली हॉलीडे के बारे में? So it's written under section 52. So section 52 of the Factory Act 1948 deals with weekly holidays. और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेक्शन 51 ये है अबाउट वीकली आवर्स, ये वीकली आवर्स के बारे में है। सेक्शन 56 ये सेक्शन 56 बोलता है कि किसी भी एडल्ट वर्कर का काम और रेस्ट मिलाकर टोटल टाइम 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेशल परमिशन लेने पर ये लिमिट मैक्सिमम 12 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन स्पेशल परमिशन लेने के बाद ही। वैसे जनरली 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती एक दिन में।
और सेक्शन 60 किस बारे में? सेक्शन 60 है रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक ही दिन में दो अलग अलग फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। डबल एम्प्लॉयमेंट ऑन द सेम डे इज नॉट अलाउड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑप्शंस, और इसका आंसर है सेक्शन 52 वीकली हॉलीडे। और आप बताएंगे कि टोटल एक वीक में कितने आवर्स अलाउड हैं काम करने के लिए, और उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो वो ओवर टाइम हो जाएगा, यह बताएंगे कमेंट में। आंसर इज ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडल्ट वर्कर वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल आवर इज इंटाइटल्ड टू। नॉर्मल आवर के बारे में क्वेश्चन आ ही गया। जो भी एडल्ट वर्कर नॉर्मल आवर से ज़्यादा काम करते हैं उन्हें क्या मिलता है, मतलब क्या वो उन्हें क्या मिलता है? सो दे गेट डबल वेजेस। ओवर टाइम वेजेस आर पेड एट ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट। नॉर्मल वर्किंग आवर कितने हैं इंडिया में? यू विल कमेंट। नॉर्मल वीकली आवर्स हैं 48 आवर्स, और वर्किंग वन डे में कितने हैं ये आप कमेंट बताएंगे। सो ये जो डबल वेजेस के बारे में लिखा हुआ है ये सेक्शन 59 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई एडल्ट वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा या एक वीक में 48 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम वेज मिलना चाहिए, जो उसकी नॉर्मल सैलरी का डबल रेट पर दिया जाता है। सो इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर इन अ डे और 48 आवर इन अ वीक, he must be paid for the extra hour at twice the ordinary rate on wage. So this was the whole concept of the overtime work and the double wages. So answer is C. Let's move to the next question. Minimum wage must be revised at least once every कितने साल के भीतर मिनिमम वेज को रिवाइज किया जाता है? So it's revised in every 5 year. मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग हर गवर्नमेंट को मिनिमम वेज कम से कम हर 5 साल के अंदर एक बार रिवाइज करना होता है, ताकि इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट के हिसाब से वेज फेयर बना रहे। मिनिमम वेज हर 5 साल में एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि वर्कर्स को महंगाई के हिसाब से फेयर पेमेंट मिल सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इज बी। Wage under the act can be fixed by. Under which act wages are fixed? So it's all of the above. Direct notification, wage board, advisory committee. Answer is D. All of the above. Government may use any method like committee, board or direct notification to fix the wages. So all three is important. ये options आप अगर तीनों आ जाए तो तीनों ही मार्क कीजिएगा, और अगर इसमें से एक आए तो आप ध्यान से देख के मार्क कीजिएगा इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर इज डी। पेमेंट बिलो द मिनिमम वेजेस। पेमेंट बिलो द मिनिमम वेजेस, अगर मिनिमम वेज से कम पेमेंट किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? लीगल, इलीगल, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट या अलाउड इन प्राइवेट सेक्टर? सो इट्स ऑफ कोर्स इलीगल एंड पनिशेबल. It is an offense to pay payment less than the minimum wage. Compensation under Employees Compensation Act is not payable for. So it's not payable for the accident due to the employee's own drunkenness. अगर वो खुद ही नशे में एक्सीडेंट करे तो उससे उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. So it is not payable for the accident
due to the employee's own fault? Answer is A. Under which section of the Industrial Dispute Act is the term industry defined? इंडस्ट्री का डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में? सो इट्स गिवन अंडर द सेक्शन 2J. आंसर इज ए. 2J के अंदर दिया हुआ है इंडस्ट्री का डेफिनेशन. Registration of trade union is dealt with in which section? Section 4. Answer A. Section 4 के तहत registration of trade union is given. Definition of factory is under which section? Factory का definition which section में दिया हुआ है? Very basic question. It's in section 2M. और 2I जो है ये इसमें डिफाइन किया गया है वर्कर का डेफिनेशन. ठीक है, इसमें डिफाइन किया गया है वर्कर का डेफिनेशन 2I में, और इसका आंसर जो है फैक्ट्री का डेफिनेशन हुआ है 2M में. ऑलराइट. Working hours for adult are mentioned in which section? This is one of the very important question. It is mentioned in section 51 of the Factories Act 1948. ठीक है, तो 51 में दिया गया है वर्किंग आवर्स फॉर द एडल्ट के बारे में. ये क्वेश्चन शायद पहले भी किया हुआ है या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया अभी. सेक्शन 52 ऑप्शंस में दिया हुआ है. इसमें डिफाइन किया गया वीकली हॉलीडे के बारे में. हाँ, ये पढ़ा था हमने वीकली हॉलीडे. ये सेक्शन 52 में दिया हुआ है. ऑलराइट. और सेक्शन 53 ये है कंपनसेटरी हॉलीडे के बारे में. इसका मतलब है कि अगर किसी वर्कर को उसके वीकली ऑफ के दिन भी काम करना पड़ता है तो उसे एक कंपनसेटरी छुट्टी मिलती है जो उसी महीने या अगले 2 महीने के अंदर देनी पड़ती है एम्प्लॉयर को. और सेक्शन 54 दिया गया है डेली आवर्स के लिए, मतलब कि मैक्सिमम 9 आवर ऑफ अ वर्क पर डे. इसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन 54 में. सो ऑल सेक्शंस आर कवर्ड और इसका आंसर है ए, वीकली आवर. Minimum wages are fixed under which section? So it's fixed under section 3, option A. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. सेक्शन 4 ऑफ मिनिमम वेज ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ मिनिमम वेज, मतलब लाइक बेसिक पे प्लस DA. स्ट्रक्चर ऑफ मिनिमम वेज क्या होना चाहिए. और सेक्शन 5 ऑफ मिनिमम वेज एक्ट बताता है प्रोसीड्यूर टू फिक्स एंड रिवाइज मिनिमम वेज, मतलब कि मिनिमम वेज फिक्स या रिवाइज करने का 2 तरीका होता है. पहला तो कमिटी मेथड होता है और नोटिफिकेशन मेथड होता है. सो कमिटी मेथड गवर्नमेंट कमेटी बनाती है जो वेजेस को स्टडी करके रिकमेंडेशन भी देती है, और नोटिफिकेशन में भी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है और उसे पब्लिश करती है और 2 महीने तक लोग अपनी राय देते हैं. उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल वेज नोटिफाई करती है. और ये है लास्ट सेक्शन 6 में लिखा हुआ है एडवाइजरी बोर्ड के बारे में. कमेटी का काम को कोऑर्डिनेट करता है एडवाइजरी बोर्ड, और अगर गवर्नमेंट को मिनिमम वेज फिक्स और रिवाइज करने में सलाह देता है ये बोर्ड. इस बोर्ड में एम्प्लॉयर, वर्कर और इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं. सो आई होप ऑल द थिंग्स आर कवर्ड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Answer is A. So maternity leave benefit is mentioned in which section? So it's mentioned in section 5, right to payment of maternity benefit. So maternity benefit जो सेक्शन 5 में दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि हर वो महिला जिन्होंने अपनी डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट से पहले के 12 महीनों में कम से कम 18 दिन काम किया हो, उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट उनके एवरेज डेली वेज के बराबर होता है। सो ये दिया गया है सेक्शन 5 में। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते। सेक्शन 3 बताता है डेफिनेशन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट और एम्प्लॉयर और वेज का, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 4 बताता है एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन हेवी एंड एनी वर्क ड्यूरिंग और आफ्टर, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी के पहले कौन सा आप काम नहीं कर सकते, ये मेंशन है सेक्शन 4 में। और सेक्शन 6 में मेंशन है प्रोसीड्यूर टू क्लेम द मैटरनिटी बेनिफिट, कौन सा प्रोसेस में मैटरनिटी बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 5 बस याद रखिएगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और काफ़ी टाइम चला गया, लेकिन इट विल वर्थ इन द एग्जाम अगर आपने लेक्चर सही से सुना हो तो। ऑल क्वेश्चंस आर previous year asked and वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में वही कराया जा रहा है। सो इट्स वर्थ योर टाइम। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो आखिरी था। ऑलराइट, यहीं पे हमारा EPFO इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होता है। आज पार्ट 2 हमने कवर किया 50 और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करें। दोनों पार्ट्स मिलके आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।